Hello everyone, welcome back to Litmails. In this video, we are going to discuss about Francis Bacon's essay of discourse. इस चैनल में पहले हमने उनके दूसरे essays of truth and of death भी कवर किए हैं. If you want, check them out in the link given above. So let's begin. अब शुरू करने से पहले a few reminders I'd like to give that guys please do check the description box. उसमें सारे details मैं हमेशा देती हूँ. इस ऐसे में भी जो बेस्ट वेबसाइट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस कवर किया है, आई हैव मेंशन दोज वेबसाइट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. क्योंकि अगर आप लिटरेचर में आंसर लिख रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप उसको कैसे लिखते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है. सो फॉर दैट please refer to the websites that I have linked in the description box, and if you are looking for an explanation, then please keep watching. So we are going to skip the initial formalities of the writer, वो कहाँ पैदा हुए थे, उनका background etc. I have mentioned everything in this slide, so please check it out. ये information easily available है कहीं पर भी Wikipedia में and many other websites, so we'll not get into the details and it will simply waste our time. So just take a screenshot of these slides. We'll get into the video and एक line by line explanation करेंगे, लेकिन I'll try to keep it as short as possible. So let's get into the video. तो अगर हमको बहुत ब्रीफली एक ओवरव्यू में मुझे एक्सप्लेन करना है what the essay of discourse is about, so I would like to say it is argumentative essay. जैसे कि आपको पता होगा, most of Francis Bacon's essays are argumentative in nature. They are very real in nature. They depict about and they talk about the true things in life. तो इस ऐसे में वो मोस्टली एक स्पीकर एंड एक ओरेटर के बारे में बात कर रहे हैं, and how this orator should not be adamant or arrogant when he is talking or speaking about something in front of an audience or a public. And not just that, Bacon इस ऐसे में इस चीज़ को भी कवर करते हैं कि आपको सिर्फ बोलने के टाइम एरोगेंस नहीं शो करना है, बल्कि आप कैसे एक अच्छे आइडियल स्पीकर बनेंगे. It's almost like as if an art of communication. He mentions all those references in this essay. So that was very brief. 2 शब्दों में मैंने complete किया literally. Now let's begin with the most important thing, जो कि है meaning of discourse. As you can see, ये dictionary meaning है written or spoken communication or debate. उसको अगर हम इन लिटरेरी टर्म्स में देखें तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि जो भाषा है और उसकी जो शैली है, जिस तरह से हम उसको प्रेजेंट करते हैं, इट इज़ ऑल अ डिस्कोर्स. यहाँ पर आपको लास्ट लाइन में कुछ टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स दिख जाएंगे, जैसे कि है आर्ग्यूमेंट, नरेशन, एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन. आई एम श्योर यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दीज थिंग्स, विच मीन्स लेट्स फॉर एग्जाम्पल से एन आर्ग्यूमेंट just like this essay is. This essay is an argumentative essay, यानी कि इस essay में the writer puts forward a few points that are necessary. He is arguing, he is trying to make a point that these are the things that should happen in order to make an ideal speaker. So ये एक तरह का डिस्कोर्स है. अब इस तरह के जितने सारे essays लिखे होंगे वो इसी के अंडर आएंगे. So this is a complete discourse. So I hope the meaning of discourse is clear. In the same way we have narration. अगर हम narration की बात करें, जितनी भी essays है या जितनी भी writings लिखी गई है जिसमें बहुत अच्छा नेचर के बारे में हो गया, किसी भी थीम के ऊपर हो गया, नरेशन किया गया है या वर्णना की गई है कोई चीज़ की, सो दैट इज़ अ नरेटिव डिस्कोर्स. तो उससे वी कम टू आवर फर्स्ट लाइन्स. नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग द एंटायर ऐसे. तो जिन लाइंस के बारे में बोल रही हूँ वो सारे लाइंस यहाँ पर लिखे होंगे. नीचे पॉइंटर्स में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, बट प्लीज़ गाइज मेक श्योर इफ़ यू आर राइटिंग एन आंसर इट शुड नॉट बी इन पॉइंट्स, इट शुड बी इन पैराग्राफ्स. आई विल मेंशन अबाउट दिस लेटर इन द वीडियो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट लेटर, बट अभी के लिए आपको समझना पड़ेगा. सो दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन. मेक श्योर यू डू नॉट राइट इन पॉइंट्स. तो इस लाइन का मीनिंग यहाँ पर जो ओवर पावरिंग स्पीकर्स है उनको पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ बोल रहे हो, आपका अग्रेशन आपके स्पीकिंग के थ्रू आना नहीं चाहिए. यू शुड नॉट शो द ऑडियंस
दैट यू आर द पिनिकल ऑफ नॉलेज, कि आपको सब पता है. यू शुड नॉट बी ऑन द एरोगेंट साइड ऑफ नॉलेज. दैट्स व्हाट बेकन मीन्स इन दिस लाइन. क्योंकि अगर आप ओवर पावरिंग होगे, जो मेन ऑब्जेक्टिव है डिस्कशन का वहीं पर लूज हो जाएगा. सो देयर इज नो पॉइंट. सो यू मस्ट ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर अबाउट टू स्पीक. इस लाइन में नाउ इन द नेक्स्ट लाइन बेकन वॉन्ट्स टू टेल कि जो ऑडियंस जब हमारी कोई बात सुनती है, दे डू नॉट लाइक मोनोटोनस थिंग्स, यानी कि जो बार रिपीटेटिवली सेम चीज़ बोला जाता है उनको अच्छा नहीं लगता. ऑडियंस को वेराइटी चाहिए होता है. तो फॉर एग्जांपल जब भी आप कोई एक डॉक्टर को मिलते हैं, वो सिर्फ उसी के बारे में बोलता रहेगा, मेडिसिन, हॉस्पिटल, सो ऑब्वियसली कोई भी बोर हो जाएगा. तो ये चीज़ अवॉइड करें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. एज द पीपल हु आर लिसनिंग लूजेस इंटरेस्ट. द नेक्स्ट लाइन टेल्स अस दैट जो ऑनरेबल पार्ट होता है स्पीकिंग का, वो दूसरों को चांस देना होता है. अगर आप पूरा डिस्कशन को डोमिनेट करेंगे, देन अदर्स विल नॉट गेट अ चांस. एंड फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी डिस्कशन या टॉपिक का एक हिस्सा को ही पकड़ के रखेंगे, देन यू विल नॉट गेट एनीवेयर. फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड प्रोटेक्शन और ह्यूमन राइट्स, तो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. बट एक लॉयर अगर बैठ कर उसका सिर्फ लीगल साइड्स ही बताएगा तो आपको बहुत ही वो अच्छा नहीं लगेगा. यू विल फाइंड इट एक्सट्रीमली बोरिंग. सो दिस मस्ट बी अवॉइडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. तो एक आइडियल स्पीकर वो होता है जो सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ जोड़ कर रख सकता है. यू हैव टू टेक इट्स लीगल एस्पेक्ट अलॉन्ग साइड्स. यू मस्ट ऑल्सो टेक इट्स रिलीजियस एंगल, मोरल एंगल्स. देयर आर डिफरेंट एंगल्स फॉर एवरीथिंग दैट मस्ट be considered. The next point, हमको अपने थॉट प्रोसेस में ऐसा वैरायटी लाना है, ऐसा एंथुजियाज्म लाना है ताकि जो लिसनर है वो कुछ सीखे, वो इनलाइटन हो और उसको उसमें मज़ा आए, और ऐसा ना लगे कि हम अपना नॉलेज उसके ऊपर थोप रहे हैं. So the points must be very rationalized and precise. नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर बेकन ने एक कुछ वर्ड्स ऑफ कॉशन दिया है, यानी कि वो बोल रहे हैं कि जब भी आप कुछ बोल रहे हैं, यू शुड नॉट गेट कैरिड अवे विथ समथिंग एल्स. आप जिस टॉपिक पे बात करें उस पे यू शुड स्टिक टू दैट, और उसी के साथ साथ किसी और को नीचा ना दिखाएं, किसी और के प्रोफेशन को नीचा ना दिखाएं. यू आर देयर टू टॉक अबाउट समथिंग, सो यू मस्ट स्टिक टू दैट. यू शुड नॉट ट्राई टू ब्रिंग समवन डाउन. नाउ दिस लाइन टेल्स कि कुछ लोगों का हैबिट होता है जो बहुत प्रोवोकेटिव होते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. ये उनके लिए है कि आप ऐसा कुछ ना बोलें जो कि इस तरह के डिस्कोर्स में कि आप किसी को हर्ट कर दें, किसी का सेंटिमेंट्स हर्ट कर दें. यू शुड ऑलवेज रेजिस्ट दीज टाइप ऑफ इमोशंस. अपनी अंदरूनी जो फीलिंग्स है अपने में दबा के रखें. जिसके बारे में आप बोल रहे हैं सिर्फ उसी के बारे में बात करें. ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लिखा है, दिस इज एक्चुअली इन लैटिन, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी यहाँ पर दिया है, स्पेयर मी माई बॉय एंड स्ट्रॉन्गर यूज द रेन्स. मतलब इट मीन्स स्टेप बैक अ लिटिल बिट, लाइक वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. स्टेप बैक, यू शुड कीप देम बाय योरसेल्फ. रेन मीन्स यू कैन सी हियर, जिसको घोड़े से, जिसको यानी घोड़े को जिससे गाइड किया जाता है उसको इसी से चेक किया जाता है. सो ही इज लाइक पुल द रेन, यानी कि यू शुड step back wherever necessary and do not try to be very provocative. Now the next point it's about यहाँ पर आप एक वर्ड देख सकते हैं, satirical vein. ये उन लोगों को बोला जाता है जो लोग बहुत सटायरिकल है इन नेचर, यानी कि जो लोग को मॉकरी करना अच्छा लगता है, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों की वीकनेस का मजाक उड़ाते हैं. दैट शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडेड. क्योंकि अगर आप किसी को सटायरिकली कुछ बोल भी देते हैं तो शायद आपको याद नहीं रहेगा, बट दे विल श्योरली रिमेंबर दैट थिंग एंड दे माइट ट्राई टू कीप अ ग्रज अगेंस्ट यू, एंड वो आप पे ही भारी पड़ेगा. तो ये चीज़ स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका एक सटायरिकल वेन है, यानी कि जो नेचर वाइज सटायरिकल है. तो दोज पीपल मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल एज स्पीकर्स. द नेक्स्ट लाइन एक्सप्लेन्स कि जो स्पीकर क्यूरियस है वो एक ग्रेट लर्नर भी है. ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बोलते जाए, उसको मौका अपने लिसनर को भी देना चाहिए कि वो भी अपने उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पाए. जैसे कि इफ़ यू हैव अ डाउट एंड यू आर आस्किंग योर डॉक्टर, वो बहुत अच्छे से वो आपको बता देगा, बट इट विल ऑल्सो लीव स्पेस फॉर यू टू आस्क क्वेश्चंस. एज अ लिसनर आप भी अपना डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी काइंड ऑफ हेल्दी कम्युनिकेशन बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर, जहाँ पे मोर नॉलेज और मोर क्यूरियोसिटी, इंक्विसाइटिवनेस की जगह ज़्यादा होती है. उस जगह में the environment for speaking is much more healthier. But here again in the next line
in this particular line, Bacon tries to warn कि as a listener भी आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि स्पीकर को ऐसा लगे कि आप उनको टेस्ट कर रहे हैं. So we have to be careful of that thing also. हमको कभी भी क्वेश्चंस को या टॉपिक्स को ऐसा ड्रैग नहीं करना चाहिए कि ऐसा लगे हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं. तो उनके अटेंशन को कभी कॉर्नर करने की कोशिश ना करें ज़्यादा. राइट. एंड द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू एज अ स्पीकर इज़ आपको स्पेस रखना चाहिए, गैप रखना चाहिए बिटवीन द वे यू स्पीक. अगर आप कंटिन्यूसली कोई चीज़ को ABCDEFG अगर आप ऐसे बोलते जाए, सो इट इज़ वेरी नेचुरल दैट पीपल विल नॉट बी रेडी टू लिसन टू यू. कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, सब बोर हो जाएंगे. इनफैक्ट दे विल बी मन ही मन आपको गाली दे रहे होंगे कि ये कितना एरोगेंट है, ये इतना उसका नॉलेज शो कर रहा है, उसका इंटेलेक्ट शो कर रहा है. सो आपको उतना टाइम भी अलाउ करना है एज अ स्पीकर कि जो लिसनर भी है वो ये सारी चीज़ों को इमेजिन कर पाए, याद कर पाए और रिकॉल भी कर पाए. द नेक्स्ट थिंग बेकन कम्स टू स्पीक अबाउट इज self-taught ought to be seldom. Seldom means not regularly or not a lot, but कभी कभी. तो ये जो डिस्कोर्सेज है, ये जो भी आप स्पीचेस दे रहे हैं या जिस तरह की बात कर रहे हैं, जो भी है वो ज़्यादा हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. कोई भी चीज़ उसको हद से ज़्यादा करने से वो भी बुरी होती है. राइट. सो इन द सेम वे इवन ये जो आप डिस्कोर्सेज में अगर कोई भी पार्ट ले रहे हैं, देन इट शुड नॉट बी अ लॉट, इट शुड बी क्वाइट सेल्डम. जब भी आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले तभी उसको ले एंड यूज इट वाइजली. द नेक्स्ट लाइन अगेन वी कम बैक टू द सेम थिंग. हियर मेंशन हियर बेकन सेज कि किसी भी बात में अगर डिस्कशन चल रहा है, इट शुड नॉट सेंटर एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल, इट शुड कंटेन ऑल द एस्पेक्ट्स, ताकि हम कंट्रोवर्सी से दूर रहे. अगर हम चारों चीज़ डिस्कस करें, सो वी आर नॉट टारगेटिंग एनी स्पेसिफिक थिंग इन जनरल. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस लाइन में बेकन एक बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं दो लोगों के बारे में, नोबल मैन के बारे में जो इंग्लैंड के वेस्टर्न पार्ट से हैं. उनमें से एक जो था बहुत ही प्राउड था, बोस्टफुल था और उसका स्पीकिंग स्टाइल भी रफ था. ही यूज्ड टू मेक फन ऑफ अदर्स एंड दैट इज़ हाउ ही यूज्ड टू एंटरटेन पीपल बेसिकली. बट एट द सेम टाइम जो दूसरा वाला था, द अदर हिज कंपेनियन, ही वॉज वेरी आउटस्पोकन, ही वॉज फ्रेंडली. वो जो गेस्ट थे उनसे इंक्वायरी करता था, बातें करता था. एंड इनफैक्ट ही यूज्ड टू इंक्वायर कि ये जो पहला आदमी है उसने क्या बोला, उसके बारे में वो गेस्ट से ही यूज्ड टू टॉक अबाउट इट. तो उससे क्या ओपिनियन उनको मिलता था, द सेकंड पर्सन, उनको ये ओपिनियन मिलता था कि जो लिसनर्स थे उनको अच्छा नहीं लगता था कि उनके बारे में ऐसे कमेंट्स की जा रही थी. सो दैट वाज वेरी हर्टफुल टू देम. हेंस सटायर शुड बी इग्नोर्ड इन सच सर्कमस्टेंसेस. नाउ अगेन बेकन इज़ डिस्क्राइबिंग, यहाँ पर वो क्वालिटी बोल रहे हैं अ गुड स्पीकर की. जो अच्छा स्पीकर होता है, ही स्पीक्स वेर एवर ही हैज़ टू स्पीक. लाइक अगर आप कहीं ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, सो यू हैव टू बी वेरी हाई साउंडिंग, यू हैव टू यूज सम गुड वर्ड्स, गुड वोकेबुलरी एंड यू हैव टू स्पीक. सो ये कुछ हॉलमार्क्स है. बट इफ़ यू आर टॉकिंग बिटवीन योर पीपल, अमंग योर लव्ड नियर्स एंड डियर वंस, उनके बीच में योर स्पीकिंग स्किल्स शुड बी वेरी सॉफ्ट. सो यू मस्ट स्पीक अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस. एंड ऑलमोस्ट एट द एंड ही कम्स टू द फैक्ट दैट कोई भी स्पीच अगर बहुत लंबा हो जाता है, उसमें कोई फ्लो नहीं होता, वो बहुत स्लो लगता है, बोरिंग लग जाता है कुछ टाइम के बाद, नो मैटर हाउ गुड इट इज़, इट विल डेफिनेटली लूज इट्स अपील. हेंस बहुत ही क्रिस्प होना चाहिए. जैसे कि आई ऑलवेज टेल आवर वीडियो ऑल्सो शुड बी वेरी शॉर्ट, इसीलिए आई टोल्ड यू आई ट्राई टू मेक दिस एज शॉर्ट एज पॉसिबल एंड आई एम रियली होपिंग विल फिनिश दिस इन 15 minutes, ताकि आप बोर ना हो जाए बट आपको ब्रीफली आइडिया भी मिल जाए. तो अंत में बेकन एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन द ग्रे हाउंड एंड द हेयर. यू कैन सी बोथ द एनिमल्स हेयर. यूजुअली माना जाता है कि जो हेयर है इट इज़ क्वाइट वीक एंड स्लो एज कम्पेयर टू द ग्रे हाउंड, बट द फैक्ट इज जो ग्रे हाउंड है इट इज़ एक्चुअली वेरी फास्ट एंड हेंस व्हाट इट डज, इट बिकम्स अ गुड प्रेडेटर ऑफ द हेयर. प्रेडेटर यानी दरिंदा. सो इट इज़ काइंड ऑफ द सेम फॉर अ स्पीकर. अगर एज अ स्पीकर आप एक लेंदी, लंबा, स्लो स्पीच इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो उसी मोमेंट में ही यू विल फेल टू कैच द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. सो इट बिकम्स वेरी अनलाइकली दैट यू विल मेक अ गुड इम्प्रेशन.
But even if you make a very short introduction also, you might appear very blunt. Hence, there needs to be a very important balance between the two. So we have discussed all the lines in the essay. I'm hoping आपको एक brief idea मिल गया होगा यहाँ पर, and you have understood what are the points जो Bacon is putting forward in order to prove his essay, in order to prove his point. Now since हमने सिर्फ explanation के लिए वो सारी slides बनाई थी, I am entering a few other slides जिसमें उनके arguments लिखा है. I've also linked the websites जिसमें बहुत अच्छे से दिया गया है. Please do check them out and take a screenshots of these few slides so that you can form all of this together to write an answer. And if you have any other queries, please do let me know in the comment section or email me. मुझसे कनेक्ट करने के लिए प्लीज़ डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैंने अपना सारा सोशल मीडिया हैंडल्स वहाँ पर मेंशन किया है. एंड डू लेट मी नो कि वीडियो कैसा लगा. अगर अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.